Yes, it's a happy day. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to the session of 12th standard secretary practice. 12वीं secretary practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. कल हमने डिस्कशन शुरू किया था regarding the various instruments which we use in the money market. मनी मार्केट के इस ट्रेड में जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, वहाँ पर किस तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे. पूरे मिलाकर 8 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात किया, दैट वाज कॉल मनी एंड नोटिस मनी. कॉल मनी और नोटिस मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कितना टाइम पीरियड के लिए होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे टू 14 डेज. फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे टू 14 डेज. कॉल मनी इज also given for a short period. The difference between call money and notice money is that call money is given for a time period, but it can be called back before the maturity of the time period, whereas notice money, when it given for a particular time, can be called back only on the expiry of the time period. But the time period is only between 1 day to 14 days, not more than that. This facility of call money and notice money is normally used between commercial banks for meeting up their cash requirements. इसके बाद हमने बात की थी treasury bills के बारे में. Who issues the treasury bills? The central government issues the treasury bills. What is the tenure for treasury bills? 91 days, 182 days and 364 days. The treasury bills are also called as zero coupon bonds because they do not carry interest. Then why does one invest in treasury bills? One invests in treasury bills because they are issued at discount and repaid at par, right? The treasury bills are in multiples of 25,000. Then the next point we saw was trade bills or commercial bills. Trade bills are nothing but the bill of exchange which are created by the buyer and accepted, which are created by the seller and accepted by the buyer. The bill of exchange are nothing but the receivables by a company on the credit sales. These bill of exchange are then discounted with a bank or a commercial bank. This process of discounting of the bill of exchange with the bank is called as discounting of bill of exchange. The commercial bank earns discount on discounting of bill of exchange. When a trade bill or a bill of exchange is discounted with a commercial bank, then it is called as a commercial bill. Then it is called as commercial bill. Normally a tenure of a trade bill is of 90 days. There is no specific amount of trade bills. क्योंकि क्रेडिट सेल की कोई स्पेसिफिक अमाउंट होती है क्या? नहीं. इसीलिए ट्रेड बिल की कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती. इसके बाद हमने देखा था कमर्शियल पेपर्स. व्हाट आर कमर्शियल पेपर्स? कमर्शियल पेपर्स आर सिंपल, लाइक यू कैन से अनसेक्योर्ड बॉन्ड्स. बॉन्ड्स आर सेक्योर्ड. हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था. बॉन्ड्स आर सेक्योर्ड पेपर्स. बॉन्ड्स आर सेक्योर्ड पेपर्स और सेक्योर्ड डेट. बॉन्ड्स में और कमर्शियल पेपर में एक ही फर्क है. बॉन्ड्स आर सेक्योर्ड, कमर्शियल बिल्स आर, कमर्शियल पेपर्स आर अनसेक्योर्ड. तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करने का. दिस आर अनसेक्योर्ड. दिस आर अनसेक्योर्ड. कमर्शियल पेपर्स आर अनसेक्योर्ड. दे आर इन मल्टीपल ऑफ 5 lakhs and the maturity period lies between 7 days to 1 year. Difference is bonds are used for long term, commercial papers are used for short term. मैं बोला what are the sources of working capital? Bonds. Sources of working capital? Bonds. हंसो नको, तूच थी वो. अच्छा तू नहीं थी क्या? अच्छा सॉरी, अपन डिबेंचर को डिविडेंड वाले हैं. सॉरी, डिबेंचर को डिविडेंड और इक्विटी शेयर्स को इंटरेस्ट. सही है, शेयर्स को इंटरेस्ट और डिबेंचर्स को डिविडेंड. मैच दो कॉलम ना, डीडी ऐसा बरोबर किया. सही है. सो कमर्शियल पेपर्स आर अनसेक्योर्ड डेट और बोरोइंग्स और पेपर्स ऑफ द कंपनी where the papers are issued or acknowledgement of debt is given for a period of minimum of 7 days to maximum of 1 year. What is the amount? They are issued in multiples of 5 lakh. They are issued in multiples of 5 lakh. Again the same logic like the treasury bill. The commercial papers are issued at discount. They are issued at discount and repaid at par. They are repaid at par, right? Now next point here is certificate of deposit. Have you read about deposits in the deposit chapter? Yes. What is the tenure for deposit? Minimum 6 months. Minimum 6 months. Maximum money market is for a period of. So all the certificate of deposits or deposit receipt which are issued for a period of less than 1 year will be traded in which market? And the deposit receipt which are for a period of more than 12 months but less than 36 months will be traded in which market? But the logic is one and the same, right? But यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या किया है? They are issued in the minimum value of multiples of 1 lakh. यहाँ पर स्पेसिफिकली जो हम सर्टिफिकेट डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने वैल्यू मेंशन की है. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू वी हैव? द मिनिमम वैल्यू वी हैव इज ऑफ अराउंड 1 lakh rupees. What is the minimum value we have is 1 lakh rupees.
These are unsecured negotiable promissory notes. Again, point of difference. Unsecured. कंशुक्ले मग कसे करायचे? Unsecured promissory notes usually issued by the commercial bank and financial institutions. It is a receipt of fund deposited in the bank for a fixed period at a specified interest rate. It can be issued for a minimum value of 1 lakh or multiple of 1 lakh. Underline 1 lakh or multiple of 1 lakh. अब कांशुक्ले का सवाल होगा, सर इन्वेस्ट तो करना है, कांशुक्ले कौटेकर सबका सवाल होगा, सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, कमर्शियल पेपर में, मंगलूरकर बस, तो कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड है तो क्यों करें? तो लॉजिक कोई मुझे बता सकता है व्हाई दे आर अनसिक्योर्ड? हाँ, short period, exactly. The tenure of the deposit which they accept or the tenure of the commercial paper which is being taken is a period of less than 1 year. एक साल के अंदर ही आपको रिपे कर रहे हैं, क्या ही उसके ऊपर सिक्योरिटी देंगे, क्या ही कंपनी के डूबने वाली एक दिन में, एक साल में. इसीलिए क्योंकि टेन्योर जो है which is less than 1 year, टेन्योर जो है as it is less than 1 year, this is the reason why you find most of the instruments traded in the money market are unsecured instruments. नाही तरी आम्ही इन्व्हेस्टमेंट सेक्युर्ड मध्येच करायचं, काय नको, रिस्क नको. They are issued at discount at face value. They have a maturity period of minimum 7 days to 1 year. Maximum maturity can be 3 years, but when it goes to more than 1 year, it is to be traded in the capital market. CDs can be bought by individual companies or etc. Right? So this is all about certificate of deposits. Next, government securities. The marketable debts issued by the government, by semi-government bodies which represents claims on the government, is known as government securities. Now, treasury bills are specifically issued by the central government, but working capital requirements or cash requirements will also be of the state and also be of the local corporations or authority. कहा भाई सामने ध्यान दो, पता है सामने अब इंटरेस्ट नहीं, सामने ध्यान दो. तभी पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट जो फंड रिक्वायरमेंट्स है, these are not for the central government just. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड रिक्वायरमेंट्स है क्या? नहीं है. There are several authorities जिनको फंड की रिक्वायरमेंट, जैसे अभी केंद्र सरकार को फंड रिक्वायरमेंट्स उन्होंने क्या किया, ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिए. But what about the state government? Let for example say the Maharashtra government requires working capital or cash requirements, right? Now in this case, when the Maharashtra government has fund or capital requirements, how they will fulfill their capital requirements? Even they will need working capital, na? So whatever securities are issued by the authorities or government organization other than the central government are issued in the form of government securities. अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है, कैश की जरूरत है, तो वो क्या इशू करेंगे? गवर्नमेंट सिक्युरिटी. परभणी महानगरपालिका आपले सहर्ष स्वागत करत आहेत, त्यांना पैशाची गरज आहे, तो अब इस केस में वो पैसे कैसे रेज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. These securities are issued by agencies like central government, state government, local self-government, municipalities, etc. These securities are safe investment as payment of interest and repayment of principal amount are guaranteed by the government. विचार करा, as they are safe, guarantee है, पैसे डूबणार नहीं. Repo rate or repurchase agreement. Now let's talk about repo rate and reverse repo rate. Now understanding the concept of repo rate and reverse repo rate, please pay attention. यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक है आरबीआई और दूसरे हैं कमर्शियल बैंक्स. एक है आरबीआई, दूसरा है कमर्शियल बैंक. मनी सप्लाई किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में. मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई. ठीक है. अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको उस फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में बताया था, देयर आर वेरियस क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टूल्स व्हिच द आरबीआई यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. बरोबर. हमने उस चैप्टर में ये देखा था कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे बोरो करती है और फिर उसी पैसे को मार्केट में सर्कुलेट करती है. हाँ या ना? यस और नो? व्हेन लोन्स आर गिवन by the RBI to the commercial bank, these loans are given at a rate which is called as the repo rate. Which is called as the repo rate. Normally, अगर मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, अंडरस्टैंड द लॉजिक, मार्केट में अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो रेपो रेट ज्यादा होगा या कम होगा?
ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि कम ब्याज पर अगर सेंट्रल बैंक लोन देगी तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा और उसी पैसे को मार्केट में फिर लोन बतौर सर्कुलेट करेगा। हाँ या ना? यस और नो? अभी रेपो रेट 6% है और किसी बैंक ने 1 करोड़ रुपए ले लिए, बाद में कल चलकर लेट से रेपो रेट कम करके 3% कर दिया गया, वही बैंक अब 2 करोड़ रुपए लेगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर उसे कम ब्याज पर अगर पैसा मिल रहा है तो कम ब्याज पे वो लोन दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोग फिर लोन लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। So the rate at which the central government lends money to the commercial bank is called as repo rate. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Repo rate. What do we call it as? Repo rate. The rate at which money is lent or loan is given by the RBI to the commercial bank is called as repo rate. Can I say repo rate से मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है? Yes or no? मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। On the contrary, there is more concept which is called as reverse repo rate. क्या कहते हैं उसे? रिवर्स रेपो रेट। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में सिर्फ कमर्शियल बैंक को ही पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभार सेंट्रल बैंक को भी कैश या लिक्विड कैश की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है? कमर्शियल बैंक give loan to the RBI or give money or lend money to RBI. The rate at which money is lent by the commercial bank to the Reserve Bank of India is called as reverse repo rate. Reverse repo rate के अंतर्गत जब कमर्शियल बैंक से RBI पैसा लेगी तो क्या मनी सप्लाई मार्केट से कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, क्योंकि मार्केट में से पैसा निकल रहा है। So the rate at which money is given by the central bank or RBI to the commercial bank is called as repo rate. The rate at which the commercial bank lends money to the RBI is called as reverse repo rate. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes. Come to concept. Repo is an agreement where the seller of the security agrees to buy it back from the lender at a high price. अब ये जो agreement होता है ना, इधर ध्यान दीजिए, एक सेकंड ध्यान दीजिए प्लीज, प्लीज पे अटेंशन, एक सेकंड। रेपो रेट के इसके अंदर सब होता क्या है देख लो। कमर्शियल बैंक रिवर्स रेपो रेट के अंदर पैसा किसे दे रहा है? आरबीआई को। आरबीआई उसके बदले में क्या करता है? अपने सिक्योरिटीज देता है, अपने शेयर्स वगैरह कुछ ऐसे सिक्योरिटीज देता है। समझ में आ रही है बात? उसी हिसाब से जब आरबीआई पैसा देता है और कमर्शियल बैंक पैसा लेता है तो कमर्शियल बैंक अपने सिक्योरिटीज जो होते हैं ना, शेयर्स वगैरह जो कुछ भी उनके खुद के, वो उन्हें इशू करता है। बात समझ में? बदले में जो है वो क्या दिए जाते हैं? सिक्योरिटीज। बस रेपो रेट, आरबीआई गिविंग लोन टू कमर्शियल बैंक, रिवर्स रेपो रेट, कमर्शियल बैंक गिविंग लोन टू आरबीआई, बदले में क्या दिया जाएगा? सिक्योरिटी। बदले में क्या दिया जाएगा? सिक्योरिटी। और वो सिक्योरिटी क्या होंगे? दे आर गिवन एट अ प्राइस एंड एग्रीड टू बी बॉट बैक एट अ फ्यूचर प्राइस व्हिच इज ग्रेटर देन द टुडेज प्राइस। मतलब सिक्योरिटी जो 100 रुपए में ली जा रही है आज, सिक्योरिटी जो आज 100 रुपए में ली जा रही है, प्रॉमिस किया जा रहा है कि 1 साल बाद इस सिक्योरिटी को 110 रुपए में वापस खरीदा जाएगा। और वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो डिफरेंस होता है टुडेज प्राइस और फ्यूचर प्राइस, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगले 1 साल के बाद प्राइस क्या होगा सिक्योरिटी का? 110 रुपए। आज का प्राइस है 100 रुपए। दिस 10 रुपीज विल डिनोट द रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Usually this agreement between RBI and the commercial banks, देखो यहाँ पर दिया है, agreement is between the RBI and the commercial bank. Repo rate is the rate at which bank borrow from RBI, दिया है वहाँ पर, at which bank borrow from RBI, and reverse repo rate is rate at which RBI borrows from bank. Are we okay and clear? Are we okay and clear? RBI uses the repurchase agreement to control the money supply in the economy. These agreements are most liquid of all the money market investment, having maturity ranging from 24 hours to several months. Repo rates, reverse repo rate को 24 घंटे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, and it can also be used for further few months but less than 1 year. Are we okay and clear? लेकिन जितने भी tools जो इस्तेमाल करती है RBI, quantitative as well as qualitative tool for controlling the money, उसमें सबसे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करते हैं वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ
money market mutual funds. A mutual fund is one which invests the money in the market instruments like call money, repos, treasury bills, certificate of deposit. It is called as money market mutual funds. Concept कुछ भी नहीं है. Mutual fund पता है? What is a mutual fund? Mutual fund क्या होता है? Can anybody tell me the role of mutual fund? बताओ कान शुक्ले. What is mutual fund? Anybody boys? अध्यक्ष, what is mutual fund? अलग अलग डेरिवेटिव डायरेक्ट. जैसे मैंने 2 दिन पहले बताया था डिफरेंस बिटवीन अ डेरिवेटिव एंड अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. पोर्टफोलियो इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. पोर्टफोलियो इज अ बिगर टर्म. इससे छोटा टर्म क्या है? डेरिवेटिव. एक पोर्टफोलियो में 2 डेरिवेटिव हो सकते हैं, 4 सिक्योरिटी हो सकते हैं. ये एक पोर्टफोलियो में बन सकता है. बात समझ में आ रही? किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो मुझे पूछो. पोर्टफोलियो इज अ बिगर बास्केट. हो केले का इन्वेस्ट म्युच्युअल फंड मध्ये. हा नाइस, बरोबर, एकदम ऐसे एक जैसे एक समान आहे. सब करा नक्की. तुमचे केले बाबांनी म्युच्युअल फंड? हा बघ किरण, शिकायला पाहिजे आपण. सो द मनी इज इन्वेस्टेड इन अकॉर्डिंग टू अ पोर्टफोलियो. एक पोर्टफोलियो के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट या निवेश किया जाता है, उस पोर्टफोलियो को नॉर्मली हमें खुद को मैनेज करना पड़ता है. rather than we taking the task and selecting the securities and investing. शिका देव कधी काहीतरी बघा, ते आपल्याला लगीन करावं पाहिजे की नाही? हाँ नहीं? तुम तो ध्यान दो स्नेहल, अपना सबसे ज्यादा मानना है मारवाड़ियों का. अपना खर्चा भी उतना है, बजट भी फुल लगता है. When we talk about securities, सही है ना? छाटना, मूंगहात, तिलक, विनायक, घोड़ी के गीत, संगीत, घोड़ी के गीत, संगीत, फिर क्या? बेवा, निकासी, मिलनी, फेरे. फिर उसके बाद फेरे के बाद क्या रहता? विदाई नहीं रे, विदाई के बीच में रहता ना वो, ऐसे देखो डेकोरेशन करके छोटा बच्चा देते हैं गोदी में, क्या बोलते हैं उसको? अरे वो घर के बड़े जेंट्स को ऐसा पूरा ऐसा लेडीज बना के उसके हाथ में बच्चा देते ना, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते राज मेरा? हाँ अबे गधे. हाँ सॉरी सॉरी, गाबड़े छबड़े. अरे तेरे को अभी ज्यादा नॉलेज होगा. सामेला, सामेला, लास्ट में सामेला. सामेला में क्या करते हैं? ऐसे घर का जो सबसे एजेड पुरुष होता है उसको बुलाते हैं और लड़की वाले उसको पूरे लेडीज के जैसे एकदम मस्त डेकोरेट मेकअप करते हैं बकायदा. पूरा पूरा मेकअप किया. सुनो ना, सुनना है ना, कुछ इंटरेस्टिंग पड़ता है हमारे इसमें. जैसे कन्यादान होता है ना, कन्यादान तो होता है लेकिन फिर भी याद दिला की होते आमची पोरगी घेऊन चाललेत बरं का, आठवण राहू द्या. तो वो हो पिळं कान, इकडे लक्ष द्या. तो हमारे इसमें कैसा है कंसेप्ट कि जो लड़के वाले रहते हैं उनमें जो भी सीनियर मोस्ट मेल रहता है फैमिली का, करता, यू कैन से करता, यू नो, अंडरस्टैंड, करता, जॉइंट इन द फैमिली. तो जॉइंट इन द फैमिली में जो करता होते हैं उस करता को वहां बैठाते हैं, बैठाकर उनका पूरा मेकअप करते हैं. पूरा मेकअप करते हैं प्रॉपर लेडीज का जैसे मेकअप करते हैं ना, वैसा पूरा मेकअप किया जाता है. मेकअप करने के बाद उनको फेटा पहनाया जाता है. फेटा पहनाने के उसके बाद उनको ऊपर से साड़ी ओढ़ाई जाती है और साड़ी ओढ़ाने के बाद उनके हाथ में बेबी गर्ल दी जाती है. मत बोलना दुल्हन दी जाती है, दुल्हन नहीं देते हैं उनके गोदी में. मैं तो बोलेंगे दुल्हन उनके गोदी में दी जाती है. तो घर में कोई छोटी बच्ची रहेगी, बेबी गर्ल, न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबी जो रहती है उसको उसके गोद में देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज सामेला. तो बहुत खर्चा है. और फिर बाद में विदाई. विदाई, यहाँ से विदाई गई के लगे पग फेरे वापस दूसरे दिन वापस अपने घर में, है ना. सेकंड डे लगे रिटर्न. मैं तो सोचा जाते भी क्यों है, आज जाने के कल सुबह वापस चला मेरे मम्मी के घर पे. यार काय लगा किलन तुला?
ते लग्न झाल्यावर येतात ना परत बॅक टू पवेलियन येतात ना, नहीं आते का तुम्हें? नहीं है? और सुभाष शिंदे आते नहीं वापस, एक बार गए की उधर छोड़ते, परत येऊ नको, गेली तशी परत येऊ नको, येते का परत? काय म्हणतात त्याला? परतनी, घर वापसी, परतनी का? कांशुकले, ओ कांशुकले, परतनी, कमिंग बॅक, किती दिवसात? 4 दिवसात, 4 दिवसात परत. हा डिस्कशन चालू आहे, हा सांगा किती दिवसात? 4 दिवसात बॅक टू पवेलियन. और नहीं, सबसे खास सिंधीज का है, कुछ नहीं, 10 रुपए का नोट का हार बनाने का, नाचते रहने का, झंझट काम नहीं, इसमें पूरी शादी का पूरा. वो मेरे को समझ, वो ऐसा पैसों का हार क्यों पहनाते समझ में नहीं आता मेरे को कंसेप्ट. हाँ, पैसों का हार क्यों पहनाते? अच्छा शाह में कैसे रहता रे? क्या कौन से प्रोग्राम रहते शादी में? तेरी नहीं करवा रहा शादी, प्रोग्राम क्या करे थे वो तो बता. अच्छा, मैंने कभी अटेंड नहीं किया. तू वो मैगजीन ही पढ़ बैठा हो, चिंपैंजी क्या है, सॉरी कौन सी मैगजीन है? बांगा, इसलिए बांगी हो गया आके तेरी पढ़ के हो मोबाइल में देख के. हाँ, किती दिवसात येतात परत? हाँ, किती दिवसात येतात? 4 दिवसात ना. फिक्स ना. हाँ ठीक. तो ध्यान दो, अपने को बहुत खर्चा है, सामेला, मिलनी, निकासी, बेवा, मेहंदी, मूंगात, हो इसी तरह. कल आई थी अपने आलिया भट्ट CCC को एग्जाम को घाघरा वगैरह पहन के फर्स्ट क्लास. हाँ, कल आलिया भट्ट आई थी यहाँ पे, घाघरा वगैरह पहन के CCC की एग्जाम देके गई है. तो ए पिल्लू बैल, तुझी काय प्लॅनिंग काय चालू आहे लग्नाची? आम्ही लग्न आळू. अरे भविष्यातल्या होणाऱ्या सून थोडस इकडे लक्ष द्या, भविष्यातल्या होणाऱ्या सून थोडा अजून टाइम आहे, अजून खूप टाइम आहे, थोडं इकडे लक्ष द्या. कम टू कन्सेप्ट. क्या हुआ सुहास, तुम्हाला नाही यायचंय परत? असं आहे का? सांगू ना आपण बाबाला, मला परत नाही यायचं, एकदा गेले की मैं उधर ही जाने, वापस नहीं आने वाले. अंडरस्टैंड द पॉइंट. ओके, सो portfolio management is a big task. As an investor, not all investors are rational in case of market. काबरा, तू बहुत irrational investor. पहले मेरे 5,000 का के मान सुन ले, थोड़ा सा अच्छे से सुन ले. मेरे 5,000 कहां तक आए, लेवल में आए क्या? थैंक गॉड. 5 के 5 है ना? हाँ बस ठीक. 5,000, हाँ 5 रुपए है ना, ऐसा ना. सी, when it comes to investment, normally investment is a big task. यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इन्वेस्टर नया आता है, उसको लगता है मेरे को मार्केट बहुत समझता है, वो 2-4 दिन ऊपर नीचे वाला ग्राफ देखते रहे, उसको लगता है मेरे को कितना चाहता है, वो आज नोट करेगा, आज मार्केट ऊपर गया, इस शेयर का दाम ऊपर गया, फिर दूसरे दिन उसका दाम नीचे आया, चौथे दिन उसका ऊपर आया. 3-4 दिन के स्टडी पे खुद को वार्नर बफेट समझने लगते हैं नए बच्चे. फिर उनको लगता है मैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया, वो हिसाब से फिर वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करने लगते हैं. बट द थिंग इज, व्हेन यू कम टू मार्केट, even Warner Buffett today is an irrational consumer because he cannot have perfect knowledge about the market. क्योंकि market is like a drunkard, पिए वाले आदमी के जैसे हो, कब क्या करेगा क्या नहीं करेगा. नहीं, एक concept है, like we had in CA final, the market behaves like a drunkard, like पिए वाले आदमी के जैसे behave करता है, वो कब क्या करेगा क्या नहीं उसका कुछ आप भरोसा नहीं कर सकते. किसने सोचा था, पेटीएम पूरा कैशबैक वसूल कर लिए, 1800 सीधा 1200 साफ कर दिया पूरा पेटीएम ने. सो कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट. सो ऐसे केस में जैसे अब कंशुकली बोले कि अपने को इन्वेस्टमेंट तो करना है, बट वी वांट सेफ्टी सिक्योरिटी. वी आर नॉट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वी कैन नॉट मैनेज आवर ओन पोर्टफोलियो.
कि कौन से सिक्योरिटीज लेने हैं, डेरिवेटिव लेने हैं नहीं लेने हैं, एग्जैक्टली कैसे रिटर्न उसके अंदर से जनरेट करने। हाँ इतना हो कि फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिल जाए लेकिन सिक्योरिटी हो, तो ऐसे केस में एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन who manages your portfolio. Mutual fund is an organization which manages the portfolio. और फिर वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, अलग अलग अपने खुद के बनाए हुए पोर्टफोलियो में पैसे निवेश करते हैं और उसके ऊपर रिटर्न्स जनरेट कर देते हैं और खुद उनके रिटर्न्स के ऊपर कमीशन कमाते हैं। अब यहाँ पे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का फंडा यही है, जो म्यूचुअल फंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है उन्हें क्या कहते हैं हम, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की डिस्कशन 7वें पॉइंट तक थी, 7वें पॉइंट पे वो खत्म हो गई है। 8वें वाले पॉइंट में हम पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिसिपेंट ओनली, दैट इज कॉल्ड एज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या करता है? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, इस मनी मार्केट के जो ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट्स हमने बताया ना, ट्रेड बिल, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रेपो, इन सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट या निवेश करता है। Whenever mutual funds or whichever mutual funds invest in the money market instruments are called as money market mutual funds. Are we okay and clear? Are we okay and clear? हाँ या ना? Yes or no? Right? चलिए, thank you so much. देता हूँ